Hello students, today we are going to learn from EVS 2, chapter number 2, work of saint. Saint means religious person. The tradition of sant that began in Maharashtra with Sri Chakradhar, Sant Namdev, Sant Jnaneshwar, Sant Chokhamela was continued by Sant coming from various satrata of society. Satrata means level, means द ट्रेडिशन ऑफ संत मीन्स जो संत जो महाराष्ट्र में अलग अलग अपने वैल्यूज़ लेके आए थे, जैसे श्री चक्रधर, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर एंड संत चोखा मेला वॉज कंटिन्यूड बाय other sant which they are come from different level of society. In this group of saints are included Sant Garoba, Sant Swata, Sant Narhari, Sant Eknath, Sant Sheikh Muhammad, Sant Tukaram, Sant Niloba, etc. Similarly, Sant Janabai, Sant सोयाराबाई, संत निर्मलाबाई, संत मुक्ताबाई, संत कन्होपात्रा एंड संत बहिनाबाई शिरकर आर ऑल्सो इंक्लूडेड. मीन्स जो ये सारे संत जो भी अपना काम कर रहे थे, दे आर कंटिन्यूड बाय दिस सेंट. They taught people various virtues like compassion, non-violence, charity, service, equality and brotherhood. These all are the saints tried to taught people various virtues. Virtues means values. Okay, like compassion means understanding, non-violence means बिना लड़ाई झगड़े के, charity means monetary help, equality and brotherhood means equality means to treat anybody equally. Brotherhood means great understanding, मतलब भाईचारा. They taught people various values like understanding, monetary help, service, equality and brotherhood. No one is inferior, no one is superior. Inferior means low, and superior means higher. Means they taught them that no one is inferior, means no one is lower and no one is higher. All are equal. They give the message of equality. Such was sentiments that was created by sant in the minds of people. मतलब such sentiments means emotion. They create such emotions in the minds of people that no one is higher and no one is lower. All are equal. Similarly, Samarth Ramdas also rendered his work in Maharashtra. Means Samarth Ramdas helped to give help, मतलब उन्होंने अपना जो काम है वो लोगों के आगे रखा. कहाँ पे? इन महाराष्ट्र. Sri Chakradhar Swami. Sri Chakradhar Swami was originally a prince from Gujarat. He became a ascetic and came over to Maharashtra. He moved all over Maharashtra preaching equality. Sri Chakradhar Swami is basically or originally a प्रिंस. वो कहाँ के? गुजरात के राजकुमार थे. ही बिकेम अ एसेटिक. वो क्या बन गए? एक तपस्वी मीन्स सन्यासी बन गए. और ही कम ओवर टू महाराष्ट्र. ही केम फ्रॉम गुजरात टू महाराष्ट्र एंड मूव ऑल ओवर महाराष्ट्र preaching means to give a talk about equality means no one is higher and no one is lower, all are equal. He did not believe in any discrimination based on gender or caste. Discrimination means different. He did not believe in any different based on gender. Gender means female, male. मतलब वो किसी में भी फ़र्क नहीं करते थे
किस बेस पे कि ये पुरुष है, ये स्त्री है, मीन्स ये फीमेल है, ये मेल है, या कास्ट है, ये हिंदू है या मुस्लिम है, इस तरीके से वो किसी में भी भेदभाव नहीं करते थे. So several men and women became his follower. Because of these, he treated all people equally and he did not discriminate based on gender or caste. Many of men and women become his follower. मतलब बहुत सारे लोग उनको इसी वजह से फॉलो करने लगे. The sect he established is known as महानुभाव sect. मतलब जो उन्होंने सेक्शन इस्टेब्लिश किया उसका नाम क्या था, वो किस नाम से जाना जाता था, महानुभाव. मेमोरेबल इंसिडेंट फ्रॉम हिज लाइफ हैव बीन कंपाइल्ड इन अ बुक टाइटल लीला चरित्र. मीन्स द मेमोरेबल इंसिडेंट्स मतलब जो बहुत यादगार इंसिडेंट है, वाक्य है उनकी ज़िंदगी के, वो एक बुक में उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है. कंपाइल्ड मीन्स टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब उस बुक में वो सारी इन्फॉर्मेशन है और उस बुक का नाम क्या है, लीला चरित्र. सो स्टूडेंट रिमेंबर, इफ़ चक्रधर स्वामी नेम come in the fill in the blanks or match up, so you should get the option Leela Charitra. Okay, so match them or fill them. Sant Namdev, another sant is Namdev. Sant Namdev was great devotee of Vitthal. He was a great devotee. Devotee means a person like somebody or like somebody very डीपली. मीन्स वो बहुत बड़े भक्त थे किसके, विट्ठल. विट्ठल एक गॉड का नाम है. ही लिव्ड इन द विलेज नारसी. ही इज़ फ्रॉम द विलेज नारसी. ही कंपोज न्यूमरस सॉन्ग इन प्रेज ऑफ गॉड. कंपोज मीन्स ही मेड सो मैनी सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ गॉड्स. मीन्स भगवान के लिए, भगवान के ऊपर उन्होंने बहुत सारे गाने बनाए. एंड परफॉर्म कीर्तन. कीर्तन इज सॉन्ग एंड स्टोरीज बेस्ड ऑन रिलीजियस थीम एवरीवेयर एंड ब्रॉट about general awakening among the people. Means he composed so many songs in praise of gods and kirtan based on the religious theme everywhere. उन्होंने हर जगह उन गानों को गाया भी था. एंड लोगों में मतलब ये अपने भजन से, अपने कीर्तन से लोगों में मतलब उन्हें नींद से जगाने के लिए उन्होंने इस तरीक़ा का कार्य शुरू किया. ही मूव्ड ऑल ओवर महाराष्ट्र टू स्प्रेड भगवत धर्मा एंड टॉट द पीपल डीप डिवोशन ऑफ गॉड. Means he moved all over Maharashtra and spread the Bhagavad Dharma and taught people deep devotion. Means deep great love for the God. मतलब पूरे महाराष्ट्र में घूम घूम के उन्होंने गॉड के लिए सच्चा प्यार लोगों में जगाना चाहा. He instilled in them the desire to protect their religion. Instill means to make somebody think. Means he make all people to think that to protect their own religion. Means to instill the desire to protect their own religion. मतलब अपने खुद के धर्म को बचाने के लिए उनको लोगों में ये जागरूकता दिखाई. संत नामदेव later traveled all over India spreading the message of humanity. He spread मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी टू ऑल ओवर इंडिया. इंसानियत का मैसेज उन्होंने पूरे इंडिया में पहुंचाया. ही ट्रैवल टू द पंजाब एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ इक्वालिटी अमंग द पीपल देयर. ही ऑल्सो ट्रैवल टू पंजाब एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ इक्वालिटी अमंग द पीपल. मतलब आपस में लोगों को इक्वालिटी का मैसेज दिया. ही कंपोज सॉन्ग इन हिंदी. इवन टुडे some of his verses, he made so many songs in Hindi language. Okay, और आज भी his verses are included in गुरु ग्रंथ साहब. verses means श्लोक, जो गीत होते हैं धार्मिक, उनके वो जो उस चीज़ के कुछ लाइंस, कुछ श्लोक आज भी गुरु ग्रंथ साहब, द होली बुक ऑफ सिख, जो सिख लोगों की होली बुक मीन्स जो धार्मिक रिलीजियस बुक्स होती है, जैसे हमारी है कुरान, तो वैसे पंजाबियों की जो बुक है, होली बुक है, उसका नाम है गुरु ग्रंथ साहब. उसमें आज भी
एक्चुअली उनके वर्सेस, उनके सॉन्ग के जो वर्सेस है वो है शामिल हैं उसमें. His songs are still sung all over Maharashtra with great love and devotion. Today's also, his songs are still sung in many places in Maharashtra with great love and devotion. Means true love, great love of the God. See the picture. He is Sri Chakradhar Swami, who spread the message of equality, not to discriminate based on gender or caste. And he is the Sant Namdev. He spread equality and humanity all over India. Next is Sant Jnaneshwar. Sant Jnaneshwar's family belonged to Apegaon. His family belonged to Apegaon. Nivruttinath and Sapandev were his brother. His brother name was Nivruttinath and Supan Dev. Muktabai was his sister. His sister name was Muktabai. Bigoted men of the time used to look down upon these children because they were the offspring of सन्यासी. बिगोटेड मीन्स जो धर्म के अंधे लोग होते हैं, जो कट्टर होते हैं. दे यूज टू लुक दिस ऑल चिल्ड्रंस मीन्स Sant Jnaneshwar, his brothers Nivruttinath and Sopandev and his sister Muktabai, all are the children are treated very badly because of this bigoted man. Why? Because they were the children of sannyasi. Offspring means sannyasi. It happened like this. ये ऐसे हुआ. Their father took sannyas and retired from worldly life. Means their father took sannyas, and sannyas person is not allowed to live with his wife, okay, or his children, but their father took sannyas and retired from worldly life. जो दुनिया की ज़िंदगी सी ऑर्डिनरी लाइफ थी उससे उन्होंने पूरी तरीके से संन्यास ले लिया था. एज अ सन्यासी ही लेफ्ट होम. इफ़ the person became sannyasi, he has to left his home. So he left his home too, but later on obeying the order of his guru. Means after some times obeying means to do, you are told to do, means उन्होंने अपने गुरु की बात मानी. He returned home and started living with his wife. He obeyed his guru's order that he should return his home and live with his wife, and he followed the order of his guru. Their 4 children were born afterward. The narrow-minded religious leader did not think it right that a sannyasi should have children. मतलब फिर जब वो अपने फैमिली के मतलब अपनी वाइफ के साथ रहने लगे तब उनके वो 4 बच्चे जन्म लिए. एंड नैरो माइंडेड पीपल, जो नैरो माइंडेड रिलीजियस लीडर्स थे. नैरो माइंडेड मतलब जो बहुत ही कम दिमाग के थे और वो मतलब नॉट वांटिंग टू एक्सेप्ट समवन्स ओपिनियन ऑफ अदर पीपल. मतलब वो दूसरे लोगों की जो ओपिनियन है वो बिल्कुल ही पसंद नहीं करते थे. कम दिमाग के होते थे, मतलब बहुत ही अलग ही दिमाग के जो लीडर्स थे. उनको ये ठीक नहीं लगा कि एक सन्यासी जो है वो वापस लौट के अपने अपने बच्चों के साथ रह सकता है. पीपल परसिक्यूटेड दिस चिल्ड्रन, मतलब पीपल ट्रीट दैम वेरी क्रूअली एंड बैनिश्ड दैम मीन्स टू सेंड समबडी अवे. मतलब वो अपने आप से उनको दूर कर देते थे, उनको बहुत ही बुरी तरीके से उनके साथ बिहेव करते थे. कहाँ? अपनी कम्युनिटी में, मतलब अपने एरिया में उन बच्चों के साथ बहुत ही क्रूअली बर्ताव करते थे. Once Jnaneshwar went round the town begging for alms, but no one would give him any alms. He had to listen to abusive language instead. One day, what happened? Jnaneshwar went around the town for begging
फॉर मनी, मतलब वो मतलब जो भिक्षा लेने के लिए वो जगह जगह घूमते थे, मांगते थे, पर किसी ने भी उन्हें पैसे नहीं दिए और उसके बदले में उनके साथ बहुत ही अब्यूजिव लैंग्वेज दे यूज्ड एंड ही हैड टू लिसन अब्यूजिव लैंग्वेज। अब्यूजिव लैंग्वेज मीन्स वेरी बैड लैंग्वेज, वेरी रूड लैंग्वेज उन्हें सुनने मिलती थी। यंग ज्ञानेश्वर वॉज डीपली पेन्ड बाय दिस इंसिडेंट, मतलब जो छोटे ज्ञानेश्वर थे वॉज डीपली पेन्ड बाय दिस इंसिडेंट दैट पीपल यूज टू गिव हिम very bad treatment, they treat them very cruelly, they used very bad language with him or with his all brother and sisters. He entered his hut and locked the door from the inside to grieve over his lot. मीन्स ग्रीव मीन्स टू फील ग्रेट सैड, मतलब बहुत ही दुख में वो डूब गए थे। एंड ही लॉक्ड हिमसेल्फ इन हिज हर्ट, ही उन्होंने अपने आप को ही अंदर से लॉक कर दिया। मुक्ताबाई केम एंड नॉक्ड एट दी डोर, शी सेड ओपन द डोर ज्ञानेश्वर, हाउ कैन वी रिमेन ड्रॉन इन अवर ओन सॉरो। He knocked the door and said, ज्ञानेश्वर open the door, how can we remain drawn, मतलब किसी भी चीज़ में कब तक हम डूबे रहना रहेंगे अपने ही खुद के गम में, मीन्स हम अपने ही खुद के गम में कब तक इस तरीके से डूबे हुए रहेंगे। Who will then look to the welfare of the world then if we remain drawn in our own sorrow, मतलब अगर हम अपने ही दुख में डूबे हुए होंगे then who is going to think about the welfare of the world, welfare means happiness, दुनिया की भलाई के लिए कौन सोचेगा। These words of his sister gave new hope to ज्ञानेश्वर, these new words means open the door ज्ञानेश्वर, how can we remain drawn in our own sorrow means जो सारे वर्ड्स थे उसकी बहन के कि ज्ञानेश्वर कब तक हम अपने ही दुख में डूबे रहेंगे और कब हम अपने लोगों के बारे में, दुनिया के बारे में सोच सकेंगे। इन सारे वर्ड्स से ज्ञानेश्वर को बहुत ही हिम्मत मिली, इस बातें सुन के ही उन्होंने डोर ओपन कर दिया। ही फॉरगॉट हिज पर्सनल सॉरो एंड स्टार्टेड हिज वर्क, ही forgot his all pain, all sorrow and started his own work. Everywhere the poor and the backward people were being oppressed. Oppressed means depressed, पीड़ित जो लोग होते थे in the name of religion. He started working for the poor and the backward people, मतलब जो पिछड़े हुए लोग थे उनके लिए उसने काम करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो लोग जो थे बहुत ही ऑप्रेस रहते थे, डिप्रेस रहते थे। उन लोगों इन द नेम ऑफ रिलीजन, मतलब धर्म के नाम पे ऐसे लोग जो बहुत ही डिप्रेस रहते थे, उनके साथ बुरा बर्ताव होता था, जो पुअर थे, बैकवर्ड थे, उनके लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। ज्ञानेश्वर went among the people and taught them to have faith in God, मतलब he traveled all over and taught all the people to have faith in God means भगवान पे भरोसा करो, गॉड पे भरोसा करो। गिव इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल, हेल्प दोज इन ट्रबल एंड एले देयर माइजरी, मतलब उन्होंने क्या कहा, गिव इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल, सबके साथ एक जैसा बिहेव करो, एक जैसा बर्ताव करो और उन लोगों की मदद करो जो बहुत ही ज़्यादा दुख में हैं, उनके दुख को, उनकी परेशानी को कम करो। दिस वॉज द गीस्ट ऑफ हिज एडवाइस टू द पीपल, मतलब यही एडवाइस उनकी सभी लोगों के लिए रहती थी। ज्ञानेश्वर्स वर्ड आर हियर्ड इन एवरी नूक एंड द कॉर्नर ऑफ महाराष्ट्र फॉर द लास्ट 700 years, मीन्स फॉर द लास्ट 700 years ज्ञानेश्वर these words heard in every nook and the corner of Maharashtra. In those days, all religious teaching was confined to Sanskrit book. मीन्स उस ज़माने में, मीन्स ज्ञानेश्वर के ज़माने में जो भी बुक्स होती थी, कन्फाइंड मतलब जो टीचिंग थी, रिलीजियस टीचिंग्स थी, वो बहुत ही छोटी थी। कहाँ पे, संस्कृत की बुक में बहुत ही छोटी छोटी थी उनकी सारी बातें और जो भी सिखाना होता था। द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल इन एवरी डे
everyday use was Marathi. In those days, the ordinary language was Marathi. Jnaneshwar wrote his outstanding book Jnaneshwari in Marathi. He wrote his own आउटस्टैंडिंग बुक, जो भी मतलब उनके काम, उनकी जो बुक थी, इसका नाम था ज्ञानेश्वरी, उन्होंने मराठी लैंग्वेज में बनाई थी. ही दस ओपन वाइड फॉर हीज पीपल, मतलब सी ही इज़ अ ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर. ही दस ओपन वाइड for his people the doors of knowledge. He opened the door of knowledge for his people, where he preached the ideal of brotherhood among the all men. Preach mean to give a talk, मतलब ताकि वो लोगों को भाईचारगी के बारे में बता सके. At a very early age at Alandi near Pune, Jnaneshwar took samadhi, that is put himself in a trance फ्रॉम विच ही नेवर कम आउट. मतलब बहुत ही कम उम्र में उन्होंने आलंदी, पुणे मतलब आलंदी जगह जो कि पुणे में है, वहाँ पे उन्होंने जीवित रहते ही उन्होंने समाधि ले ली. समाधि मीन्स अपने आप को ऐसी जगह, मतलब पहाड़ों की गुफा में कैद कर लेना या वहाँ पे जाके बस जाना, और उसे वो मतलब लोग जो है बाहर से बंद कर देते हैं और ताकि उसमें एक रोशनी भी नहीं जाती है, और ऐसी जगह पे उन्होंने समाधि ले ली ताकि वो दुनिया से हट जाए और अपना काम वहीं पे करते रहे, और अब उन्हें बाहर क्या हो रहा है उस चीज़ से उन्हें कोई लेना नहीं देना होता. वो अपना ध्यान पूरा अपनी तपस्या में लगा देते हैं. इवन टुडे ऑन द 11th डे ऑफ अशद एंड कार्तिक, लैक ऑफ पिलग्रिम्स गो टू आलंदी पंडारी विथ डिवोशन. मीन्स आज भी, इवन टुडे ऑन द 11th मीन्स अशद और कार्तिक के 11 डे पे बहुत सारे लोग पिलग्रिम्स मीन्स ट्रैवल टू रिलीजियस प्लेस, मतलब जो मतलब रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं ना, जैसे हम हज पे जाते हैं, ठीक है, वैसे उसे कहा जाता है पिलग्रिम्स, मतलब ऐसी ट्रैवलिंग जो रिलीजियस जगह पे होती है. तो 11th डे ऑफ अशद एंड कार्तिक, लैक ऑफ पीपल ट्रैवल टू आलंदी पंडरी विथ डिवोशन. बहुत ही डिवोशन के साथ, बहुत ही लगन के साथ अपना प्यार उनके लिए ले के जाते हैं बहुत सारे लोग आज भी आलंदी और पंडारी में.